So today we will start with the further topic after crystalline and amorphous solid and the classification of crystalline solid. We will deal with the term crystal lattice and unit cell. So now we shall see what do we mean by crystal lattice and unit cell. तो हम 3 डायमेंशनल जहाँ पे पार्टिकल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. दैट इज हाउ वी गेट द टर्म क्रिस्टल. So first we shall see crystal lattice. It means the 3-dimensional arrangement of the constituent particle. जो भी आपका constituent particle है, let that be atom, ion और a molecule. जो भी आपका constituent particle है, वो 3-dimensional arrange कैसे हो रहा है? Ordered arrangement है. उसमें भी किस तरह का ज्योमेट्री वो लेता है. सो 3-dimensional arrangement of constant particle in space is called as a crystal lattice and it is also referred to as space lattice. And each atom or molecule or ion is represented by a point. उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक पॉइंट की तरह. और ये पॉइंट स्पेस में किस तरह से अरेंज्ड है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. दैट इज हाउ यू गेट द वर्ड क्रिस्टल लैटिस. इट्स द कलेक्शन ऑफ constituent particles or the collection of points in space which is called as crystal lattice. For example, if we talk the arrangement of particles in 2D, in this board I have to arrange the particles. The points are arranged on this board in a regular manner, that is there is the arrangement, definite proper position of the points and the points are located one below the other. And if I connect these points, if the points are connected by lines, you get a geometry and this geometry is repeated throughout the crystal lattice. तो ये तो 2D में rectangular shape आ रहा है and it goes like that. So this is one way of arranging the particle and here I have given the shape in the form of a rectangular. So it's a rectangular lattice. Another possibility may be now if I connect, you get a parallelogram shape. So this is the second kind of lattice. तो हर बार rectangular नहीं होगा. You may have either rectangular or parallelogram lattice or even square possible arrangements. तो बहुत सारे arrangement possible है हमारे पास points का in space and this is called a space lattice. But this is in the 2D. Now when you talk about the 3-dimensional arrangement, the particles may be arranged in space in a regular manner and this is how they are being arranged. You may have a square shape also for the lattice point. Now in this case, the points when you connect, the geometry that you get is a square. So this is a square. So square arrangement they have and this is the next kind of crystal lattice. तो crystal lattice अभी 2D था, इसको अगर आप एक और स्टैक कर दोगे, एक और लेयर इसके ऊपर डालोगे, you get the 3-dimensional arrangement called as crystal lattice. तो lattice क्या है? बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जो स्पेस में, और ये पॉइंट्स है क्या? एटम, मॉलिक्यूलर आयन, जिनको हम हार्ड स्फीयर मानते हैं और सेंटर को, एटम के सेंटर को हम इंडिकेट करते हैं एज अ पॉइंट और वो इंडिकेट कर रहे हैं इन क्रिस्टल लैटिस. सो इट्स अ 3-dimensional arrangement of the constant particle in space in a regular repeating manner. और क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन जो होता है that is called as unit cell. So what is a unit cell? It's the smallest portion of
द क्रिस्टल लैटिस। और जिसको आप कोई भी डायरेक्शन में रिपीट करोगे तो वो पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार कर देगा। ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है और इसको रिपीट करते हैं, which when repeated in different directions forms the entire crystal lattice. It will form the entire crystal lattice. ठीक है, तो स्पेस लैटिस और यूनिट सेल्स होते क्या है? लैटिस का मतलब है एटम्स या कांस्टेंट पार्टिकल का स्पेस में अरेंजमेंट, और वो स्पेस में कैसे अरेंज्ड है? रेगुलर मैनर में अरेंज्ड है, और वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से, कितने डिस्टेंस पे, क्या एंगल है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का छोटा पोर्शन जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, जिससे पूरा लैटिस तैयार हो जाता है, उसको कहते हैं यूनिट सेल। सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का, और उसको अगर हम रिपीट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से तो पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाता है, और क्रिस्टल लैटिस को ही स्पेस लैटिस कहते हैं। सो नाउ further we shall discuss what are the types of unit cell and how many type of crystal systems do we have. So now continuing with unit cell. Now unit cell is the smallest portion which when repeated in different direction forms the crystal lattice. So first we shall know the features of a unit cell. यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, और एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज a in one direction, then you have in another direction b, and in third direction c. If in these a b c are called as edge lengths, so different distance between the particles in x, y and z direction are called a, b, c which are called edge length. तो एक यूनिट सेल में तीन एक्सिस होती है x, y, z, और उनमें डिस्टेंस पार्टिकल्स कितने दूरी पे अरेंज है, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ. एंड नाउ representing the angle in downside, so this is your constant particle, this is x axis, this is your y axis and this is your z axis. ये मान लेते हैं a है, ये b है और ये c है. ठीक है, तो तीन एंगल भी है. a और b के बीच के एंगल को हम कहते हैं एज गामा, b और c के बीच के एंगल को कहते हैं एज अल्फा, और a और c के बीच के एंगल को कहते हैं एज बीटा. सो यू हैव थ्री एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, and these are called as axial angles. Alpha is the angle formed between B and C, beta is formed between A and C, gamma is formed by A and B. तो दो एक्सिस से एक एंगल डेवलप होता है, that's called axial angle. So the unit cell are characterized by three lengths and three angles. So total you require 6 parameter to get the complete information for a unit cell. और सारी इंफॉर्मेशन यूनिट सेल की जानने के लिए 6 पैरामीटर्स चाहिए, अल्फा, बीटा, गामा एंड ए, बी, सी. और हर एक पॉइंट एक कांस्टेंट पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये था एक क्यूबिक यूनिट सेल, a smallest unit cell, cubic unit cell, where all the distances ABC would be equal and all the angle would be equal and that to 90 degree. तो अगर इसको हम एक्सटेंड करें इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो वापस से एक और क्यूब बन जाएगा. You get another लैटिस. सो ये एक यूनिट सेल था, अब ये दूसरा. तो ऐसे एक्सटेंड करते जाओ तो बहुत सारे यूनिट सेल जुड़ते जाएंगे और क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस. और एक क्रिस्टल लैटिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं, तो बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर बनता है एक क्रिस्टल लैटिस. और एक क्रिस्टल लैटिस जो ड्रॉ किया हुआ है दैट इज द क्यूबिक यूनिट सेल. एंड इन क्यूबिक यूनिट सेल A, B, C are equal
and alpha, beta, gamma are equal, and that is equal to 90 degrees. So a crystal lattice is a complete arrangement of all the constant particle in the space, and the smallest portion of that crystal lattice is called unit cell. Now we will discuss the unit cell has characters. Each unit cell is characterized by its angle and length, and टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, और उसमें से 14 तरह से डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हमारे पास है. वी हैव 14 डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स with the help of 7 crystal system, and those 14 arrangements are called as Bravais lattice. अगस्ते ब्रवाइस करके एक साइंटिस्ट थे, ही वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन, और उन्होंने डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स बताए थे. स्पेस में पार्टिकल कितने तरह से अरेंज हो सकते हैं, अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट बताए, और ये कहा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उनसे 14 डिफरेंट पॉसिबल लैटिस तैयार हो सकते हैं. So we will discuss first the types of unit cell and then 7 crystal system. Now we will discuss the type of unit cell. Unit cells are the smallest portion of the crystal lattice, and the unit cells are broadly classified into 2 types: simple, or also called as primitive unit cell, and the second one is called as centered or non-primitive unit cell. तो 2 तरह से यूनिट सेल्स है, सिंपल और सेंटर्ड. Now first is simple. In simple or primitive, the atoms or the constant particles are only at the corners. जो भी यूनिट सेल है उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, देन इट्स कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल. Whereas in primitive, the atoms are at the corners and at the center of the body or face. So I'll write and some other place. तो एटम सिर्फ कॉर्नर पे नहीं है, कहीं और भी है. वो कहाँ पर है वो उनके टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे. So unit cell of 2 types, simple and centered. Simple atoms are only at the corners and in center, कॉर्नर के अलावा कहीं पर भी. और सिंपल में जो हम यूनिट सेल पढ़ते हैं वहां से एटम कॉर्नर पे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिकल शेप, देन द एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर. सो दीज आर द एटम्स जो क्यूब के कॉर्नर्स पे हैं, और हर एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं. तो यू हैव एटम्स ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. So this is a simple cubic unit cell. In simple cubic unit cell, atoms are only at the corners, or each corner atom is considered to act as a hard sphere. और इस स्फीयर का सिर्फ 1/8 पोर्शन ही इस यूनिट सेल के लिए है. इस क्यूब में इस स्फीयर का कितना हिस्सा आ रहा है, सिर्फ 1/8, इसका भी 1/8. तो हर एक कॉर्नर एटम कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं इस क्यूब में, वो होता है 1/8. ठीक है. सो ईच कॉर्नर एटम गिव्स 1/8. यू हैव 8 सच एटम, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, इट्स 1. तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ सिंपल क्यूब इज 1. तो टोटल नंबर ऑफ एटम दिख तो 8 रहे थे, बट टोटल कंट्रीब्यूशन हर एटम से पूरे का पूरा 1 नहीं आ रहा. वो कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस यूनिट सेल में, 1/8. तो 1/8 into 8 will give you 1. So number of atom for simple cube in a unit cell is only 1. It's not 8, it's 1 per unit cell. Simple cube में एटम सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, हर एक कॉर्नर एटम 1/8 देता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1. The second type is centered or non-primitive. Now in this, the first type we will discuss is body centered cubic unit cell, called as BCC. Here the atoms are at the corner plus at the center of the body. क्यूब के बीच में है और कॉर्नर पे है. 8 कॉर्नर पे है
और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। जो क्यूब के बीच में है, एक ही एटम है क्यूब के बीच में और पूरे का पूरा वो उसी क्यूब के लिए है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 2 एटम पर यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड में हाउ मेनी एटम्स आर इन, 8 एटम कॉर्नर पे है और एक बॉडी के सेंटर पे, एक क्यूब के बीच में है, और ये पूरा 1/1 हिस्सा देगा। तो ये भी 1/8 दे रहा था, ये भी 1/8, सारे कॉर्नर वाले 1/8 है, प्लस एक एटम सेंटर पे आ चुका है जो क्यूब के बीच में लटक रहा है, वो पूरे का पूरा 100% कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 2 एटम पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूब के 8 कॉर्नर पे एटम और एक बॉडी के बीच में, यानी क्यूब के बीच में, और वो इसी क्यूब के लिए है, तो वो पूरे का पूरा 1 और 8 कॉर्नर एटम 1/8 दे रहे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बीसीसी इज 2। So this is the second type, body centered cubic unit cell. Now the third type of centered unit cell is face centered cubic unit cell, also called as FCC. Here the atoms are at the corner plus at the center of each फेस। तो 6 फेस होते हैं, हर एक फेस के सेंटर पे है और कॉर्नर पे है। 8 कॉर्नर आइटम होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 8 होता है। तो जो सेंटर होते हैं, हर एक दीवार, जैसे कमरा ले लो वो क्यूब के शेप में होता है, हर दीवार के जो साइड्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, हर एक वॉल के बीच में एक एटम है, तो वो कितने, वो जो दीवार के बीच में जो एक एटम है वो कितने और कमरे में जुड़ सकता है, 2। तो हर एक कमरे में उसका कंट्रीब्यूशन कितना आया, 1/2 आया। और ऐसे कितने एटम है मेरे पास, 6 एटम है, और वो सिर्फ हाफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो एटम्स आर एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। 6 एटम कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, बट टोटल कंट्रीब्यूशन उनसे जो आ रहा है वो सिर्फ 3 का है, और यहाँ पर कॉर्नर वाला 1 का है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम in FCC per unit cell is 4 atom per unit cell. So you have a cube where the atoms are at the corner and at the center of each face. तो एक बॉल है यहाँ पर नीचे राइट साइड, एक फ्रंट की बॉल है और एक बैक साइड बॉल है। So you have atoms not only at the corner but at the center of each face. हर एक सेंटर वाला एटम 1/2 दे रहा है और कॉर्नर वाला 1/8 दे रहा है। तो कॉर्नर पे 8 एटम है, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 1। 6 एटम फेस के सेंटर पे, हर एक का हाफ कंट्रीब्यूशन, तो 1/2 ऑफ 6 इज 3। सो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 4 पर एटम इन अ FCC। तो फेस सेंटर्ड इज द सेकंड सेंटर जहां पे एटम सिर्फ कॉर्नर पे नहीं है, हर एक फेस के सेंटर पे है, फेस यानी कि दीवार। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एटम्स आर एट द कॉर्नर एंड 2 opposite faces and at the center of 2 opposite face. हर एक फेस के सेंटर पे नहीं है, सिर्फ 2 opposite faces के सेंटर पे है। For example, you have a cube where atoms are at the corners of the cube. ठीक है, कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर वाला एटम है, और हर एक कॉर्नर वाला एटम अपना 1/8 दे रहा है, तो वहां तो एटम है ही है, प्लस 2 फेस पे, तो मैंने एक फेस ऊपर का लिया और एक एटम उसके ऑपोजिट पे लिया, सिर्फ 2 फेसेस पे है और दोनों फेस ऑपोजिट में है। 8 कॉर्नर एटम है, उनका कंट्रीब्यूशन 8 आ रहा है, हर एक का 1/8 हुआ। 2 फेस सेंटर है, हर एक का हाफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है। सो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 2 एटम पर यूनिट सेल। सो इन एंड सेंटर 2 ही एटम यूनिट सेल के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जबकि 8 और 2 एटम 10 एटम थे, बट 10 के 10 ऐसी यूनिट सेल के लिए नहीं है। कॉर्नर एटम 1/8 देते हैं और फेस सेंटर हाफ दे रहे हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ यूनिट सेल। वी हैव सिंपल यूनिट सेल एंड centered unit cell. In simple, atoms are only at the corners, but in primitive corners पे होते हैं,
but in centered atom are at the corner plus at somewhere else. If it is body center, then atoms are at the corner and the body center. If it is a face center, atoms are at the corner and at the center of each face. And if it is end center, atoms are at the corner but only two opposite face centers. सिर्फ दो opposite faces पे ही है, कोई भी दो face ले लो but they should be opposite to each other. सिर्फ दो faces पे होंगे और ज़्यादा नहीं होंगे. So this is a classification of unit cell and number of atom per unit cell. For simple cube it's 1, for body center it's 2, for face center it's 4 and for end center it's again 2. तो फेस सेंटर में 4 होते हैं और एंड सेंटर में 2 एटम. तो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे होते हैं? इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल.